تو یہ ٹیکہ ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے محب الوطن دکھانی ہے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, کسی اور کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے. اس ریسنٹ ٹائم لائن میں ان کی جتنی بھی پریس کانفرنسز میں نے اٹینڈ کی ہیں یہ ان میں سب سے زیادہ سخت تھی. تو میرے پاکستانیوں, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے. 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. این او سی نہیں دی تو ہم نے احتجاجی جلسہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ اس دن آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہماری اب اس تحریک میں ہم مہنگائی کے خلاف ان کا جینا حرام کر دیں گے جس طرح یہ عام عوام کا جینا حرام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک ہی بات تھی کہ سہیل آفریدی صاحب یہ ایون گنڈا پور بن گیا, احتجاج کی کال نہیں دیتے, یہ بھی اڈیالہ نہیں جاتے, کوئی پلان نہیں ہے ان کا. تو سوشل میڈیا کا پریشر ہے کہ واقعی آپ تیار ہیں احتجاج کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. پاکستان میں 2 اپریل کی رات ہے. اب سے کچھ دیر پہلے میں خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے واپس آیا کیونکہ سہیل آفریدی کی ایک پریس کانفرنس تھی. یہ پریس کانفرنس کافی زیادہ اگریسو رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ یہ مکمل سن بھی سکیں گے. اور اس میں کیا گیا اعلان کہ پی ٹی آئی 9 اپریل کو راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. 9 اپریل کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹے اس روز 4 برس مکمل ہو جائیں گے. رجیم چینج یا جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی تو 9 اپریل کے روز سے اب تک 4 سال مکمل ہونے والے ہیں. تو اس روز کی مناسبت سے یہ ایک جلسہ پلان کیا جا رہا ہے راولپنڈی میں. اس کے لیے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, جو تیاریاں ہو رہی ہیں, وہ ابھی آپ سہیل آفریدی کی زبانی سن لیں گے. اس میں 2 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. ایک یہ کہ سہیل آفریدی کی باڈی لینگویج کافی زیادہ اگریسو نظر آئی. حالیہ دنوں میں جتنی بھی ان کی پریس کانفرنسز میں نے دیکھی ہیں, ہفتے میں 1 آدھ پریس کانفرنس تو وہ کر ہی رہے ہیں, تو ان میں سب سے زیادہ اگریسو یہ تھی. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کسی کوشش میں تھے, مسلسل کوشش کر رہے تھے 4-5 مہینوں سے, اور اب جا کے انہیں یہ یقین ہو رہا ہے یا انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی. وہ مفاہمت کے حوالے سے ہوں یا وہ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن بنانے کے حوالے سے ہوں کہ چلے اپنی طرف سے ایفرٹ کی جائے, جو الزامات ہمارے پر لگائے جا رہے ہیں ان کو غلط ثابت کیا جائے. اور انہوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ کوشش کی. اب جا کے ایسا لگ رہا ہے کہ جو وہ سوچ رہے تھے, جیسا وہ چاہ رہے تھے, ویسا نہیں ہو رہا. اور پھر انہوں نے آج یہ جلسہ کرنے کا اعلان کیا. اس میں ایک اور خاص بات بھی ہے, اگر آپ نوٹس کریں, میں آج زیادہ بات نہیں کروں گا, آپ ان کی گفتگو ذرا سنیے گا, لیکن جو میں آبزرو کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ محمود اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس, یہ پچھلے کچھ دنوں سے منظر عام سے تھوڑا سائڈ پہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل غائب ہو گئے ہیں یا کوئی اختلافات ہیں یا سام ہاؤ, لیکن جو ہم یہاں پہ فیل کر پا رہے ہیں کہ محمود اچکزئی اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے یا اس طرح سے فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہو رہے. ایون جو ابھی جلسہ اناؤنس کیا گیا, اس بارے میں بھی جب آج سہیل آفریدی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم محمود اچکزئی صاحب کو بھی اس بارے میں آگاہ کریں گے. دیٹ مینس کہ ابھی تک انہوں نے مشورہ بھی نہیں کیا, آگاہ بھی نہیں کیا, ابھی وہ آگاہ کریں گے. اور پھر جب ان سے کہا گیا کہ ساری ذمہ داری تو ان کو دی گئی تھی احتجاج کی یا باقی سارا کچھ, تو انہوں نے کہا یہ ہمارا پی ٹی آئی کا اپنا جلسہ ہے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں شاید سٹریم لائن نہیں ہے. بہرحال ابھی اس کو اور ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور جو فیکٹ پتہ چلے گا وہ آپ سے شیئر کریں گے. آج کی پریس کانفرنس میں کیا ہوا میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ یہ سن لیجئے. 2 پارٹس تھے ان کی پریس کانفرنس کے. ایک حصے میں ساری پولیٹیکل گفتگو اور دوسرا حصہ ان کا وہ صوبے کے مسائل کے حوالے سے این ایف سی اور جو کچھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, اعلیٰ سطح میٹنگز, ان میں کیا چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں. تو یہ ان کی پریس کانفرنس سنیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کی پریس کانفرنس 2 باتوں پر ہے. سب سے پہلے جو 3-4 میٹنگز ہوئی وفاقی جعلی حکومت کے ساتھ, میں نے اپنے خیبر پختونخوا کی عوام کا مقدمہ اور پاکستانی قوم کا مقدمہ وہاں پر رکھا. اور دوسری اہم بات جو کل پولیٹیکل کمیٹی میں ہماری ڈسکشن ہوئی اور اس پر کچھ فیصلے کیے گئے, اس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے ہیں. کہا گیا کہ دہشت گرد ہے, اسمگلر ہے,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी सियासी जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसने कभी मेमोगेट स्कैंडल नहीं किया, उसने कभी डॉन लीक्स नहीं किया, उसने कभी भी अपने जलसों में जो हैं की तस्वीरें नहीं चलाई, उन्होंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई नहीं की। जिन्होंने की थी वो इख्तिदार में बैठे हैं, कोई वज़ीर आला है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई बगोड़ा है, कोई जो है हुकूमत में है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और लीडरशिप के साथ वही रवैया रखा जा रहा है। फिर कहा गया कि दहशतगर्दी के खात्मे में ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सीरियस नहीं है। मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें अपना जो पॉलिसी हमारी स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक है वो दी। मैंने कहा इस पर अमल करो, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वफाकी नुमाइंदे आए, उधर भी मैंने सेम यही कहा कि ये पॉलिसी है, इस पर जाएं, क्योंकि 21 साल से आपकी पॉलिसी नाकाम ही होती आ रही है, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही। तो ये हल है दहशतगर्दी के खात्मे का, उस पर भी अमल नहीं हुआ। मैं तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीरियस हूं, अभी उस पर अगर अमल नहीं हो रहा तो ये जो है कौन सीरियस नहीं है। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपको, क्योंकि जो बयानिया बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और हमारे कारकुनों के खिलाफ, वो भी इनका बहाना ख़त्म। फिर कहते थे दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, वो पॉलिसी भी हमने दी, वो बहाना भी ख़त्म। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हो रहा, फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों बंद हैं? 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ, बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात क्यों बंद है? तो अगर हम मैं जो पॉलिटिकल कमेटी है हमारी, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इन मीटिंग्स में शिरकत करनी चाहिए, मैं गया, मैं बेटा पाकिस्तान की बात थी। लेकिन पहली मीटिंग में मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पर अपनी नफ़रत, अपनी अना, अपनी बुग़्ज़ को एक साइड पर रख कर यहाँ पर बैठा हूँ। अगर मैं पाकिस्तान के लिए यहाँ बैठा हूँ तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रही है पाकिस्तान में वो ख़त्म हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। क्योंकि सिर्फ मैंने ही मुहिब्बुल वतन रहना है, आप नहीं हो, आपको पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है। और वहाँ पर मैं एक बात कर रहा हूँ और उसके अगले रोज़ जो है मेरे ख़िलाफ़ एक नया केस खोल दिया जाता है जिसमें जो है मुझे नोटिस हो जाता है। तो ये टेका हमने लिया हुआ है कि हमने मुहिब्बुल वतन दिखानी है आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए, किसी और की ये जिम्मेदारी नहीं है। किसी और को नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान का सोचे, सिर्फ हमने ही पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान का सोचना है अदालतों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है अपनी बाकी इदारों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है आईन और कानून की बालादस्ती लानी है, पाकिस्तान का सोचना है हकीकी जमहूरियत के लिए तगो-दो करनी है कुछ भी नहीं। इदारे तबाह, तमाम इदारे मफलूज। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उसे दूसरे दर्जे का शहरी जो है उस तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक आम वर्कर को तो छोड़े, वज़ीर आला को इस तरह ट्रीट किया जा रहा। तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। कहा गया कि मतलब बातचीत से क्या फ़ायदा निकला? कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमने फ़ैसला किया है कि जब तमाम आईनी और कानूनी रास्ते हमने आजमाए और कुछ भी नहीं हो रहा, तो वाहिद रास्ता हमारे पास जो है फिर एहतजाज का ही बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, आईन और कानून के दायरे में रहकर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 9 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। उसके लिए जो हैं कल पॉलिटिकल कमेटी में वकला को बता दिया गया और हमारी जो ज़िली तंजीमें हैं क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन में और अदालत में एप्लीकेशन जमा करवाए, तो इंशाल्लाह वो भी जमा हो जाएगी NOC के लिए। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाने के लिए ये NOC हमें दे दी जाएगी और हम अपना जो है जमहूरी
जो अमल है वो कर लेंगे वहाँ पर पुरअमन तरीके से। लेकिन अगर इन्होंने एनओसी नहीं दी जलसे की तो ये हमें जहाँ पर भी रोकेंगे वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाजी जलसा हम फिर करेंगे। और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि 9 अप्रैल को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बिरूनी साजिश के ज़रिए, जमहूरियत का गला घोंटा गया 9 अप्रैल 2022 को। 9 अप्रैल आने वाला है, जिस तरह 9 अप्रैल में पूरी पाकिस्तानी कौम निकली थी तो इंशाअल्लाह ताला इस 9 अप्रैल को भी पूरी कौम ने निकलना है और दुनिया को बताना है कि जो ये जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई है इसके ना किसी फ़ैसले को हम मानते हैं और ना इसको मानते हैं। अगर ये हमें भेड़ बकरियां नाज समझते तो जो ये बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं और 21 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये फ़ैसले करते, तो भेड़ बकरियां ही समझ रहे हैं ना, अभी भेड़ बकरियां समझ रहे हैं और सारा बोझ जो है वो आवाम पर ही डाल रहे हैं। मैंने ये कहा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उस मीटिंग में ये कहा तो मिडिल क्लास का या जो है हमारे पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं वो लोग किस तरह ये इसको अफोर्ड करेंगे। 9 अप्रैल का एक दिन का जलसा है और ये जो है तमाम कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो अपने जहन में डाल दें कि ये एक दिन का ही जलसा है, लेकिन 9 अप्रैल को एक जमहूरी हुकूमत को बिरूनी साजिश के ज़रिए गिराया गया था, तो उस दिन निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले जलसा करेंगे लियाकत बाग में, अगर एनओसी नहीं दिया गया तो फिर जहां पर रोकेंगे वहां पर एहतजाजी जलसा करेंगे। एक चीज़ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ सीएम साहब की इजाज़त से। ये कल जो पॉलिटिकल कमेटी में जलसे के हवाले से फैसला हुआ, इसमें हम पूरे पाकिस्तान से अपने ओहदेदारों को बुला रहे हैं। जो हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर है, विलेज कौंसल से लेके रीजन पे, डिस्ट्रिक्ट पे, जितने भी हमारे ओहदेदार हैं, हम उन ओहदेदारों को इस जलसे में सब इनवाइट कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, जुनैद अकबर साहब भी अगर कोई बात करे, सीएम साहब ने तफसीली बात की, एक चीज़ वाज़ेह है कि जो ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं हम इसको मुस्तरद करते हैं। इसको पाकिस्तानी कौम के ऊपर पेट्रोल बम तस्वर करते हैं। पेट्रोल बम नहीं, अब ये हाइड्रोजन बम बन गया है कि जो जिस लेवल की ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, अगर ये कीमतें कम करने का फार्मूला हमसे पूछते हैं, हमारे पास है। जो 95 रुपए आप लेवी टैक्सेस ले रहे हैं उसको कम करें। आप चाहते हैं कि आम मिडिल क्लास तबका तबाह हो जाए, उसकी चमड़ी उधेड़ दें। जो चिंची वाला, चापरी वाला, रिक्शे वाला आम गरीब बंदा वो 500 रुपए का पेट्रोल कैसे खरीदेगा? आपने तो अपने आयशों के लिए जहाज खरीद लिए 13 अरब रुपए के। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को रिलीफ मिले, अपनी जायदादें बेच के वापस लाएं वो पैसा जो आप पाकिस्तान से लूट के गए। इधर आके आम पाकिस्तानियों का आप चमड़ी उधेड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तेल हम मजीद महंगा करेंगे। ये लोग तेल महंगा करेंगे, हमारे अब इस तहरीक में हम महंगाई के खिलाफ इनका जीना हराम कर देंगे, जिस तरह ये आम आवाम का जीना हराम कर रहे हैं। आपने लियाकत बाग का इंतखाब ही क्यों किया? आपने किसी और सिटी का, इस्लामाबाद, लाहौर या कोयटा या कोई और शहर क्यों इंतखाब नहीं किया? इसकी सिर्फ वजह बताइए। देखें, एक तो पिंडी जो हैं वो जो हमारा हज़ारा रीजन है उसके साथ नज़दीक हैं, पंजाब के नॉर्दर्न रीजन में आता है और इस्लामाबाद के साथ नज़दीक हैं, तो इस वजह से जो है हमने पिंडी का इंतखाब किया है। और बाकी जो आप सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, पिंडी में हमारे लीडर भी पाकिस्तान से आपने कॉल दी, ये अपने कारकुनान, ये पूरे पाकिस्तान से हमारे ओहदेदार सिर्फ आएंगे जिस तरह इन्होंने बताया, और जनरल पब्लिक अगर आना चाहे तो वो जो है वो उनको कौन रोक सकता है, वो तो निकलेंगे। सेशन का आगाज किया था, आपने कहा था जब तक 1 लाख कारकुन जमा नहीं होंगे तब तक एहतजाजी तहरीक नहीं शुरू होगी, और परसों तक फिगर का 10,000 का, क्या 1 लाख कारकुनान आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं? आपने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा, 1 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड होंगे और मेरे ख्याल में जो है बड़ी पार्टी और अभी तक 10,000 कारकुन रजिस्टर्ड हुए, ये भी सवालिया निशान तो है। यार आप अजीब बात करते हो। मैं अभी जो है ऑनलाइन अनाउंस करता हूँ और डायरेक्टली जो है अभी आपके ख्याल में पंजाब के अगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हम करें तो कितने 12 करोड़ की आबादी, 13 करोड़ की आबादी है, तो एक दिन में कितने रजिस्टर होंगे? लेकिन खैर है, आपको पता लग जाएगा। एक मिनट, अच्छा सब्र करो, इसको बहुत सवाल आ रहा है। हाँ,
जो रिहाई फोर्स भी कायम कर रखी है, इनके पास ये भी बता दीजिए क्या इनके पास बंदूकें भी होंगी? इमरान खान साहब ने इस कौम को जो है वो विजन दिया हुआ है, शऊर दिया हुआ है, उसने जो है एक आइडियोलॉजी दी हुई है, हमें गाइड किया हुआ है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस जगह कौन सी बात करनी है और कब क्या करना है। तो इन सब चीज़ों का हमें पता है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम इंटैक्ट हैं, बिल्कुल तैयार बैठी हैं और इंतज़ार में हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी जो जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह वो भाई जान ने कहा, जिसको सवाल आ रहा था, उसने कहा कि मतलब जो है आप मुज़ाकरात और वो चीज़ें तो 5 महीनों से हम देख रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। ना मुलाकातें हो पा रही है खान साहब से, ना जो है खान साहब के केसेस लग रहे हैं, और दूसरा कोशिश भी की जा रही है कि इमरान खान साहब के केसेस को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लेके जाया जा सके और वहाँ पर जो है फिर इंसाफ का कत्लेआम हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन 5 महीनों में हो रही है, जहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन बल्कि 1.5 साल से। तो मेरे ख्याल में मुज़ाहमत होगी तो उसके बाद जो है कुछ नज़र आ रहा है, वरना ये सीरियस नहीं है। अगले मंगल को अडियाला जेल में अलीमा खान साहब ने पार्टी लीडरशिप को कहा दी है कि 10,000 अहदेदार अडियाला जेल पहुंचेंगे। 9 तारीख को आपने जलसे का ऐलान किया है, 10 तारीख को पिशावर में वकला कन्वेंशन होने जा रहा है। सर, अगर जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, हमने देखा 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले 25 को भी हमने देखा, तो सर अगर फिर उस तरह होता है तो ये एक्टिविटीज़ ख़राब नहीं हो जाएंगी? देखें, 7 अप्रैल को तमाम लीडरशिप को, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, जितने भी हमारे वकला हैं, उन सब को अडियाला जेल आना चाहिए, अहदेदारों को, और वहाँ पर जिस तरह अलीमा आपा ने कहा है तो उसमें शिरकत करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है 9 अप्रैल की तैयारी आज से तमाम अहदेदारान शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा 10 अप्रैल का जो जिरगा है, शायद वो 3-4 दिन हम डिले करें, क्योंकि ये तमाम अहदेदारान 9 अप्रैल को आएंगे तो फिर मुश्किल है कि वकला का जिरगा हो सके। उसको 3-4 दिन अपनी जितनी भी ILF की टीम है उनसे मशवरे के बाद इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा डिले करेंगे और इंशाल्लाह ताला अब बेहतरीन होगा, आप टेंशन नहीं। इस मरतबा भी यही लग रहा है कि खान ने जिनको एहतजाज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं या बातचीत की जिम्मेदारी दी हुई है, उनको आपने साइडलाइन अमली तौर पर कर दिया और खुद कहा है कि उनसे बात करेंगे, जलसे का ऐलान करने के बाद करेंगे। यानी तो क्या देखिए, ये सियासी जलसा है हमारा। 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के ज़रिए अमेरिका ही बोल दे, अमरीकी साजिश के ज़रिए जो है एक जमहूरी हुकूमत को यहाँ पर गिराया गया। तो वो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जो वज़ीर आज़म थे। इस सियासी जलसे में मतलब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही काम है, लेकिन वो जो है हमारे बड़े हैं और इस पूरी तहरीक को वो लीड करेंगे, तो उनके साथ जो है ये शिरकत भी करेंगे, वो क्या कहते हैं, बात भी करेंगे और उनको इनवाइट भी करेंगे इसमें इंशाल्लाह। एक सवाल करें, एक कौन करे? अच्छा, फीमेल फौजिया को दे, वो ख़वातीन को दे दे। सोशल मीडिया पे एक ही बात थी कि सुहेल अफरीदी साहब ये अलीमिन गंडापुर बन गया, एहतजाज की कॉल नहीं देते, ये भी अडियाला नहीं जाते, कोई प्लान नहीं है इनका। तो सोशल मीडिया का प्रेशर है कि वाकई आप तैयार हैं एहतजाज के लिए? सिर्फ अकेला वहाँ पर मैं बैठकर एहतजाज करूँ ना, ये भी एक एक्टिविटी है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। वहाँ पर इंशाल्लाह ताला 9 अप्रैल को ये हमने जलसा पहले करना है, अगर इजाज़त दी, NOC नहीं दी तो हमने एहतजाजी जलसा करना है। फिर उसके बाद जो होगा वो उस दिन आपको पता लग जाएगा। दूसरा, सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे मजबूत ताकत है, उनको ऐसा ही करना चाहिए। जो लीडरशिप फ़र्ज़ करे उनको लगे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं या जो है काम नहीं कर रही, उन पर कड़ी से कड़ी तनकीद की जाए। मैं तनकीद पर खुश होता हूँ और तनकीद से अपनी इस्लाह करता हूँ। जो सोशल मीडिया पर हमारी टीम है, जो इमरान खान साहब के असल वॉरियर्स हैं, वो इमरान खान साहब से इश्क करते हैं और उनको ये फ़िक्र है कि मतलब इमरान खान साहब क्यों नहीं निकल रहे। लेकिन यहाँ पर हमने जो है
सिर्फ़ और सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ देख कर फैसले करने हैं। हमने इंशाअल्लाह ताला अपनी सोशल मीडिया को मज़ीद मजबूत बनाना है, अपने साथ मिलाना है, अपने फ़ैसलों पर उनको ये यकीन दिलाना है कि हमारी रोज़ाना की जदोजहद सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उनका जो है मशवरा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी, उनको जो है इस तहरीक में शामिल भी करेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत को 9 अप्रैल 2022 को गिराया गया था, तो ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफॉर्म से करेगी। दूसरी बात ये है कि NFC का शेयर हो, खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हकूक़ हों उनकी हम बार बार बात कर रहे हैं। मैंने जो है पूरी कौम को समझाया हुआ है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को जो है NFC पर एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस करवाई है और उन सबको मालूम है। इससे पहले अगर कोई नहीं भी जानता था तो मैंने एक को जो है रट्टा करवाया। अगर मैं इस कुर्सी पर रहूँ या ना रहूँ, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को यह पता होना चाहिए कि उनका हक जो है वो बाकी सूबे ज़बरदस्ती कर रहे हैं और इसमें वफाक की जाली हुकूमत इसके साथ शामिल है। क्योंकि आइन में लिखा है कि NFC का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। आप अगर मर्ज अजला को जो कि 60 लाख से ज़्यादा आबादी है उसको अपना हिस्सा नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप 4 सूबों में NFC का शेयर तकसीम नहीं कर रहे, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। ये मुद्दा हमने तमाम फोरम पे उठाया। तारीख़ का सबसे बड़ा और ख़तरनाक सैलाब इस दफ़ा आया था खैबर पख्तूनख्वा पे, वो फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट की वजह से, जिसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ था और बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ था। वफाक ने हमें उस कीमत में 1 रुपया भी नहीं दिया। जितनी भी रुपए दिए हैं हमने अपने सैलाब ज़दगान के लिए, वो सारी की सारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने वसाइल से कर रही हैं या कर चुकी हैं। इन सब के होने के बावजूद अभी जुल्म ये किया जा रहा था कि हमारे बजट पर कट लगाया जा रहा था, जो 20 से तकरीबन 30 अरब रुपए इजाफी था। जो रिलीफ पैकेज है इसके अलावा जो मोटरसाइकिल के लिए और हमारे किसानों के लिए हम अनाउंस कर चुके हैं, इसके अलावा तकरीबन 20 से 30 अरब रुपए ये कटता। इसके ये क्यों लगाया जा रहा था? क्योंकि आवाम को जो है सब्सिडी देनी है। तो हमारा मुद्दा पहले से यही है कि नेशनल पॉलिसीज़ इस तरह बनाओ कि आप जो है फायर फाइटिंग फिर ना करें, कि आपके जो है यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना हो और उस पर जो है फिर लोगों को रिलीफ देना हो। नेशनल पॉलिसीज़ या वफाकी हुकूमत इसके लिए होती है कि आप पॉलिसीज़ इस तरह बनाएं ताकि हमें जो है फायर फाइटिंग फिर ना करनी पड़े, लॉकडाउन ना लगाना पड़े, मार्केटें बंद करना ना पड़े। बहरहाल हमने वादा किया हुआ है हर मीटिंग में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की ये हुकूमत उस किसी भी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे आवाम को नुकसान हो और आवामी मफाद में ना हो, चाहे जो भी पॉलिसी बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की ये हुकूमत हमेशा अपने अवाम के साथ खड़ी रहेगी। बाकी नेशनल पॉलिसी के तहत अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, जिसकी मैंने मुखालफत की, क्योंकि एक पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़े, दूसरा जो है आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करटेल करें, तो इससे जो हमारा मिडिल क्लास, क्योंकि दुकानदार कौन है हमारी तरह मिडिल क्लास ही है, तो उसका दुख दर्द हमें पता है। दूसरा जो है आपका 45% पाकिस्तान की आबादी का गुर्बत की लकीर से नीचे हो चुका है, जो 10 करोड़ लोग हैं, जिनको रिलीफ देना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सोच से बाहर है। उनकी बात करना ये हमारी जिम्मेदारी है और ये वहाँ पर हमने की है।